हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं और वो है हेनरीज लॉ एंड द हेनरीज कांस्टेंट। आप पिछली वीडियो में ये देख चुके हो कि जो पी गैस है दिस इज़ इक्वल टू के एच इंटू एक्स। दिस इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द हेनरीज लॉ, where kH is Henry's constant and X is the mole fraction of the gas which is dissolved, and P gas is the pressure above the gaseous solution, right? From here you can easily see that P gas is directly proportional to the mole fraction. That means there is a direct relationship between the pressure of the gas and the mole fraction of the carbon dioxide gas. As we had done in the previous class, we had seen a clear direct relationship between the two. Now suppose we have a solution of HCl gas which is dissolved in a solvent cyclohexane. Okay, now this is your solute here and this is your solvent here, and you have made a solution here. अब जब ये सॉल्यूशन बच्चे बनाया गया तो क्या देखा गया कि HCl गैस का जो प्रेशर था कि किस प्रेशर पर ये गैस इसमें फिल की जा रही थी साइक्लोहेक्सेन सॉल्यूशन में, यानी इसका जो मोल फ्रैक्शन था इस गैस का, उन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप देखी गई। अब जैसे आप ये देखो, यहाँ पर इधर हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ द HCl गैस दिखाया है इन ए सॉल्यूशन इन साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पर जो है बच्चे हमने यहाँ पार्शियल प्रेशर दिखाया है, इट इज़ इन द यूनिट टोर। ओके, नाउ यू कैन ईजिली सी कि व्हेन द प्रेशर इज दिस मच देन द मोल फ्रैक्शन इज दिस मच। व्हेन द प्रेशर इज फर्दर इंक्रीज अप टू दिस यूनिट, लुक हियर, then the mole fraction is further increasing. So that means if we draw a graph between the partial pressure of the gas and the mole fraction, then this will be a line passing through the origin, because there is a direct relationship between the pressure of the gas and the mole fraction of the gas which is being dissolved in the solution. So if you take the slope of this graph, this will give you the value of KH, that is P gas upon X. Slope of this graph will be the value of KH. Now the second thing you can see from here is the second thing, that this is the first thing, the slope of this graph will be equal to P gas upon X. Next thing you can notice here is that KH is inversely proportional to the solubility. Mane more is the solubility, or you can say more is the value of KH, more less will be the solubility. यानी KH की वैल्यू जितनी हाई होगी इसकी X की वैल्यू जो है उतनी ही लो होगी, और KH की वैल्यू अगर लो है तो X की वैल्यू जो है बच्चे उतनी ही जो है वो हाई होगी। ठीक है, अब ये भी देखा गया है कि जो KH की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ KH, दिस KH वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस. It is not same, it is different for different gases, right? So for example, just look at this graph here. At the temperature 293 Kelvin, look here, 293 Kelvin, the value of KH here is 74.48, right? And at the same temperature, value of KH for this oxygen gas, see, the temperature is 293, for at temperature 293,
For the nitrogen gas, KH value is 74.8. And for the oxygen, if you see here, at the same temperature 293 Kelvin, it is 34.86, right? So that means ऑक्सीजन की जो KH वैल्यू है वो कम है, सो इट इज़ मोर सॉल्युबल, एंड नाइट्रोजन की जो KH वैल्यू है वो ज़्यादा है, सो कंपेयर टू ऑक्सीजन it will be less soluble, right? So this means if you look here, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं एक सिमिलर प्रेशर की बात करूँ, देखिए ये जो ग्राफ है आपका, ये यहाँ पर ये ग्राफ ये नाइट्रोजन गैस के लिए है, ये वाली जो ग्राफ की लाइन है दिस इज़ फॉर द हीलियम गैस, और ये वाली जो गैस है ये ऑक्सीजन गैस के लिए। सपोज एग्जामिनर आपको यहाँ से ये ग्राफ देते हैं और आपसे पूछते हैं कि व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द वैल्यू ऑफ KH फ्रॉम दिस ग्राफ। तो देखो बच्चे, अब यहाँ पर अगर मैं एक पर्टिकुलर प्रेशर ले लेती हूँ, मान लो कि मैंने सपोज ये वाला पर्टिकुलर प्रेशर लिया, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सपोज बेटे मैंने ये वाला प्रेशर लिया, तो इस वाले प्रेशर पर आप देखिए हीलियम गैस के लिए जब इतना प्रेशर है तो उसकी सॉल्युबिलिटी इतनी है, राइट। एट द सेम प्रेशर अगर मैं नाइट्रोजन के लिए देखूं बेटे, तो ये उसके पैरेलल जो सॉल्युबिलिटी है वो यहाँ जा रही है, एंड इफ़ आई कंपेयर इट विद ऑक्सीजन तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो यहाँ पर जा रही है, ठीक है। ध्यान से बेटे देखना, प्रेशर जब आपका P है, एक पर्टिकुलर प्रेशर की बात मैंने कर ली, सपोज ये वाला जो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर है, 2 एटमॉस्फेयर, 3 एटमॉस्फेयर, इस प्रेशर की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इस पर्टिकुलर प्रेशर P पर आप देखिए हीलियम की सॉल्युबिलिटी, यहाँ सॉल्युबिलिटी यानी कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिजॉल्व्ड है वो इस तरह से बढ़ रहा है। तो आप देखिए हीलियम की सॉल्युबिलिटी सबसे कम है, नाइट्रोजन की जो सॉल्युबिलिटी है, ध्यान दीजिए, जो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी है वो उससे ज़्यादा है, और ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो हमने क्या पढ़ा है कि मोर इज़ द सॉल्युबिलिटी लेसर विल बी द वैल्यू ऑफ KH, ठीक। तो इसका मतलब जो हीलियम है, अगर हम KH का ऑर्डर निकालें, वैल्यू KH ऑर्डर हम निकालें, जो KH की जो वैल्यू है यहाँ पर ऑर्डर इसका अगर हम देखें KH वैल्यू का यहाँ पर क्या है, तो बच्चे ऑक्सीजन जो है वो सबसे हाई सॉल्युबिलिटी है, तो इसका मतलब इसकी जो KH है फॉर ऑक्सीजन गैस सबसे कम होगा। फिर उसके बाद नाइट्रोजन की जो सॉल्युबिलिटी है ये उससे कम है, तो इसका मतलब जो KH वैल्यू है नाइट्रोजन की ये उससे तो हाई ही होगी। और यहाँ पर अगर हम हीलियम का केस देखें तो बच्चे इधर देखिए आप, यहाँ इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो सबसे कम है। यहाँ अगर हम ये ओरिजिन हमने 0 से शुरू करा तो सबसे कम हीलियम की सॉल्युबिलिटी है। दैट मीन्स अगर हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम है यहाँ पर, तो इसका मतलब जो इसकी KH की वैल्यू है हीलियम की सबसे हाई है, ठीक है। तो बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपसे ये कहा जाएगा कि आपके पास 3 गैसेस हैं, सपोज A, B और C, उनकी KH वैल्यूज़ आपको दी गई हैं और आपसे पूछा जाए कि कौन सा इसमें से ऐसा गैस है जिसका KH वैल्यू हाईएस्ट है। तो बच्चे जिसकी सॉल्युबिलिटी जो है सबसे कम है, मान लो इसका मोल फ्रैक्शन जो है वो सबसे कम होगा अगर इसकी KH की वैल्यू जो है वो हाई है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है बिटवीन KH एंड X, दैट इज़ द इनवर्स रिलेशनशिप, राइट। आई होप ये आपको बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी, क्योंकि MCQ में ये क्वेश्चंस जो हैं आप बहुत फेस कर सकते हैं। तो अब दूसरी बात यहाँ पर देखिए
एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहती हूँ बेटे कि ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है यहाँ पर 293 केल्विन पर, इसका जो KH की वैल्यू है, ऑक्सीजन जो है ये देखिए 293 केल्विन पर इसकी जो KH की वैल्यू है यहाँ पर 34.86 है। ठीक है बेटे, यहाँ देखिए ये। और ऑक्सीजन की ही वैल्यू 303 केल्विन पर, 303 केल्विन पर ऑक्सीजन की जो KH वैल्यू है, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये है 46.82। सो अब यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन से कि ऑक्सीजन का जो KH वैल्यू है वो 293 केल्विन पर अगर 34.86 है और 303 केल्विन पर ये 46.82 है, तो यहाँ से आप क्या इन्फर या कंक्लूड कर सकते हो बच्चे कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, आप यहाँ से देखिए 7 और 3 10 डिग्री सेल्सियस का जो है या केल्विन का टेम्परेचर जो है यहाँ इंक्रीज हुआ है, तो KH की वैल्यू भी इंक्रीज हुई है। ठीक है, यानी टेम्परेचर आपने इंक्रीज करा तो KH की वैल्यू भी इंक्रीज हुई है, लेकिन दिस इम्प्लाइज कि जो अगर KH इंक्रीज होगा तो X, या आप कह सकते हो कि उसकी जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो डिक्रीज होगी। ठीक है, अब आप ये देखिए किसी भी गैस का किसी भी लिक्विड में जो एक सॉल्यूशन ये बनाते हैं, गैसियस सॉल्यूशन जो है बनाने का जो प्रोसेस है, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, लुक हियर वेरी केयरफुली, इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चे आप। यहाँ जब आपने हीट को इंक्रीज करा तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नाउ एज पर ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है कि जब आप एक कोई पैरामीटर किसी इक्विलिब्रियम में बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है जहाँ वो पैरामीटर कंज्यूम हो रहा होता है, तो हीट जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन में कंज्यूम हो रही है। तो दैट मीन्स अगर आप यहाँ पर हीट जो है वो इंक्रीज कर रहे हो, या कह सकते हो आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो फेवर्ड किया जाएगा। बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होने का मतलब है कि गैस यहाँ से रिलीज होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो जब उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी तो दैट मीन्स वाटर में 303 केल्विन पर जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विल बी लेस, बट एट 293 केल्विन द टेम्परेचर, at this temperature the presence of oxygen will be more. So you can very easily understand कि जो बच्चे फिशेस होती हैं ना, they feel more comfortable, फिशेस जो हैं वो बहुत कंफर्टेबल होती हैं in cold water rather than warm water. फिशेस जो हैं they are not वेरी कंफर्टेबल इन द वार्म वाटर। क्यों? क्योंकि वार्म वाटर का मतलब क्या है कि टेम्परेचर जो है वो हाई है। टेम्परेचर अगर हाई है तो इसका मतलब KH हाई है, और अगर KH हाई है तो इसका मतलब जो X है, ऑक्सीजन गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो लो होगी। तो जब ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ जो है वो अगर कम हो जाएगी तो फिशेस will be not comfortable in the warm water. They will be comfortable more at the low temperature when the more of the oxygen will be present for them to breathe. So there is a reasoning based question that why fishes are more comfortable in the कोल्ड वाटर रादर देन द वार्म वाटर। ठीक है बच्चे, यहाँ से अब आपने एक बहुत और इम्पॉर्टेंट बात जानी है कि जो KH की वैल्यू होती है, वैल्यू जो इसकी KH वैल्यू है ये बच्चे डिफरेंट होती है। इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट्स। KH वैल्यू इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट्स।
Now look at this table very carefully. Look at this table बच्चे. हाइड्रोजन गैस की वाटर में जो KH की वैल्यू है 71.18 है, और हाइड्रोजन की बेंजीन में जो KH वैल्यू है दैट इज़ ओनली 3.67. ठीक है, तो अगर KH की वैल्यू इतनी लो है बेंजीन की, जो KH की वैल्यू है हाइड्रोजन गैस के लिए, तो इसका मतलब यहाँ पर जो उसकी सॉल्युबिलिटी है, हाइड्रोजन गैस की जो सॉल्युबिलिटी है हाइड्रोजन गैस में बहुत हाई होगी. क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर KH वैल्यू है बेटे वो इधर लो है. ओके, नाउ यहाँ आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर में KH वैल्यू 1.67 है, और बेंजीन में जो है यहाँ पर इसकी 0.11 है. इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है KH वैल्यू अगर लो है इसकी, तो यहाँ पर जो है वाटर के कंपैरिजन में इट विल बी मोर सॉल्युबल, राइट. सिमिलरली यू कैन सी फॉर मीथेन ऑल्सो. मीथेन की वैल्यू जो है वाटर में जो है 41.85 है KH की वैल्यू, और बेंजीन में जो है ये 0.56 है. सच एन लो वैल्यू ऑफ KH. ठीक है, ये लो KH वैल्यू है कहाँ पर? बेंजीन में. इसका मतलब जो मीथेन गैस है ये यहाँ पर बेंजीन में ये हाईली सॉल्युबल होगी. ठीक है, तो बच्चे आप सिर्फ एक इस चीज़ से कि KH जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस है, कितने सारे कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हो, और बहुत सारे जो है रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो है उनके आप आंसर्स दे सकते हो. सो दिस इज़ ऑल इन द टुडेज क्लास. इफ़ यू फाउंड दिस कंटेंट यूजफुल टू यू, then please like, subscribe and share to others. This is Chemistry Made Easy with Meena ma'am. Thank you so much for watching.